Okay, good morning student. So today we discuss about the next part of our chapter, that is microbes in human welfare. And today we are going to discuss about the next part, that is the sewage treatment plants. So first of all, here you see that what is actually the sewage. So because of the tremendous increase in urbanization and population, human population, every day the wastewater have been released from our every home, from municipality, from education sector, from industries, from home, from medical sources. So from every air, whatever it may be, the used water is there, that waste water going to be converted and that may get released, that we considered as sewage. The sewage is nothing but the waste water. Once you utilize that particular water and that may going to be released, so that particular water get considered as sewage. And in that sewage, that means the waste water, it may going to possesses different kinds of waste material. So that particular waste material, it may be organic waste material or it may be a solid waste material, or the physical waste material, like plastics are there, woods are there, chappals are there, what you can say that the shoes are there, then other things are also there. And in the organic waste category, food, debris, cattle waste, human being etc., then the medical waste material, then industrial waste material is also there. So that may going to be released, that going to possesses different kinds of the pathogenic organisms in that particular water. Along with that, different kinds of the poisonous chemical contents. And all that particular waste water which may going to release from that particular home, that get released into the natural water bodies that we know as rivers. Once that particular wastewater get released into the rivers, then what has happened? This particular water get polluted, and water it may be the aquatic ecosystem which is present inside that particular water bodies, that gets collapse. That particular water become polluted, that is not suitable for to us, and that particular water is also not suitable for the agricultural purpose. So before going to release that particular wastewater, we have to first of all clear that water. We have to carry out some treatment over that particular sewage water, and that particular water it may get make much suitable that it should get released into the river. कहने का ये मतलब है बेटा, हमारे घरों में जो भी पानी निकलता है, जो भी हम नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, कुछ भी करने का जो हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री से जो पानी बाहर निकलता है, या मेडिकल सेक्टर है, वहाँ से जो पानी बाहर निकलता है, ये सारा जो गंदा पानी हम लोग कहते हैं जो नालियों में बहता रहता है, यही सेवेज वाटर है. तो आपने देखा होगा सेवेज वाटर में क्या क्या गंदगी होती है. तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, उसके साथ साथ में अदर डिब्रीज आर आल्सो देयर एंड द सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज आल्सो देयर, देन मड इज आल्सो देयर. तो उसके अंदर मड्स भी होते हैं, सैंड्स भी होता है, स्टोन्स भी होते हैं, पबल्स भी होते हैं. सो एवरीथिंग इज देयर. और ये ऐसा गंदा पानी नाले से बहते हुए कहाँ जाता है? हम लोग तो उसे स्टोर नहीं करते, वो जाता है रिवर में, नेचुरल वाटर बॉडीज में. अब अगर ये गंदा पानी नेचुरल वाटर में जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज में जाएगा, तो ऑब्वियसली रिवर का पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा. और ये जो गंदा वाटर होता है, उसके अंदर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले जो दूसरे जीव जंतु है, फिशेस है, अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, इनको भी डैमेज करता है, और उससे फिर पूरा का पूरा जो फूड चेन होता है वो कोलैप्स हो जाता है. And many times what happened that this particular aquatic organism, they going to possess much tremendous changes in their genetic, that you called as the, what you can say that the mutation which may going to be carried out there, and sometimes this particular aquatic organism may get die also. So before going to release that particular wastewater into the natural water bodies, first of all we have to clear that water up to some extent. हम पूरी तरह से उसको पूरा क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक उसको क्लियर करवा के फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करने के बाद अगर हम उस वाटर को रिवर में छोड़े या नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़े तो अच्छा रहेगा. तो हमारा जो वाटर है, हमारा जो रिवर है वो खराब नहीं होगा, और आगे चल के हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो खराब नहीं होगा.
क्योंकि बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में जो पीने का पानी आता है, दैट पर्टिकुलर वाटर गेट कमिंग फ्रॉम डैम्स. अभी जो डैम होते हैं, सो दैट पर्टिकुलर डैम गेट मेड अप ओवर द रिवर्स. जैसे अभी हमारे चंद्रपुर शहर में हमारे को जो पानी मिलता है वो भी डैम से मिलता है. तो वो जो डैम जो इरई रिवर डैम, दैट रिवर इज देयर, इरई रिवर. You can also see that our Irai river is also going to be wasted. It may going to also get much polluted because of the release of this particular waste material, with this particular sewage water. And we got that particular water, drinking water from that Irai dam. And this particular Irai dam is situated over the Irai river. So consider that, suppose that such type of the waste water, you are going to collect it into the dam, and same water which is going to use for the drinking purpose, then what is going to be happen? So waterborne different kinds of the diseases that going to collapsing us. So to check that, we have to first of all clear that particular waste water, that is the sewage water, and then it should get released into the river. So because of that, our natural water bodies could not get polluted. So for this purpose, we have to use different kinds of we can use different kinds of microorganism for to clear that particular waste water, or that you can say the sewage water. How it may going to be carried out there? So here you see that this particular sewage water treatment plants get work in 2 steps. There are 2 steps are there. The first one is nothing but the physical process, and another one is nothing but the biological process. 2 processes are there. It may going to work in 2 process. One physical process, and another one is nothing but the, or you can say that it is the mechanical process. So what has happened here in this particular first case? This particular first case also going to be work in 2 ways. So one of them is nothing but the filtration, and the second one is nothing but the sedimentation. So filtration and sedimentation. So first of all you can understand, suppose that, so this one is nothing but the river, ये हमारा river. So this is our town, so that you can say that the Chandrapur town is there. From that particular town, the waste water which may going to be released through that particular nalas. So this one is nothing but a waste water, or that is the sewage water, and this is actually the river. ये हमारा हो गया river. अब ये river है, so this one is nothing but a sewage water. ये हमारा sewage water. So that we are going to release from this particular town. अब यहाँ पर ये जो sewage water यहाँ पर release हो रहा है, it may going to be released into this particular river. Before to release that, you have to use here the mesh. जालियां लगा देना, जाली लगाने से क्या हो जाएगा? वाटर इट मे बी द वेस्ट कंटेंट्स आर देयर, द सॉलिड मैकेनिकल कंटेंट्स आर देयर, दे मे गेट स्टिक हियर. तो यहां से फिल्टर होके वाटर सामने जाएगा. लेकिन इसके पहले यहां पर करते क्या है? सपोज यू सी दैट वी कैन ड्रॉ दैट पर्टिकुलर डायग्राम हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली. So this one is nothing but our, so this one is nothing but our wastewater nalas are there. So first of all you have to make here the big tanks. यहाँ पर हम लोग बहुत बड़े-बड़े tanks. In that what particular tank, so all that particular water first of all released into this particular tank. Then what has happened there? First of all you have to taken out the floating debris which are present over that particular water. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले काम क्या करना है? जो फ्लोटिंग डेब्रिज होती है, ये जो पानी के ऊपर फ्लोट होने वाले जितने भी कंटेंट्स है, ऑइल कंटेंट्स है, अदर कंटेंट्स आर देयर, फ्लोटिंग कंटेंट्स, पाण्याच्या वरती पानी के ऊपर जो फ्लोट होने वाले कंपोनेंट्स है उसको सबसे पहले हम लोग मेज के द्वारा निकाल लेंगे, पहला काम. सो दैट वन इज नथिंग बट द फिल्ट्रेशन. तो पानी के ऊपर रहने वाले जितने भी कंटेंट्स है, पानी के ऊपर तैरने वाले, वो सारे कंटेंट्स को हम लोगों ने निकाल लिया. अब उस वाटर को सेटल डाउन होने देना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेटलिंग, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेडिमेंटेशन. So what has happened that in this particular sedimentation, the other solid component, just like as the mud is there, sands are there, pebbles are there, the other solid component or the some organic waste component also,
that may get settled down within that particular bottom of this particular tank. So ऊपर का कचरा तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब पानी के बॉटम में जो कचरा जमा हो गया, so that is nothing but the प्राइमरी स्लज, वो है हमारा प्राइमरी स्लज। और उसके बाद ये जो प्योर वाटर ऊपर वाला जो वाटर है, सपोज दैट दिस वन इज नथिंग बट ऑर्गेनिक डिब्रीज, these all are nothing but a waste material that you taken out, and in this particular tank, ये जो टैंक था ऊपर का कचरा भी हम लोगों ने निकाल लिया, और ये जो बॉटम को जो सेटल डाउन कचरा हो गया, ये जो वेस्ट मटेरियल हो गया, अब उसके बाद ये जो इसको तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसके ऊपर का जो वाटर है that we are going to possess here the organic debris which are diluted here. So this particular water debris along with this particular water now considered as effluents. तो ये हो गया हमारा इफ्लुएंस। देखो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, पानी के ऊपर रहने वाला जितना भी कचरा था वो कचरे को पहले निकाल लिया, फ्लोटिंग डेब्रिस, और दूसरा उसमें स्टेप क्या किया, उस वाटर को सेटल डाउन होने दिया। सेटल डाउन होने से क्या हो गया, जितने भी उसके अंदर में सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट थे, सैंड था, पबल्स थे, मड था, वो सारा का सारा जमा हो गया बॉटम को, और उसका ऊपर वाला जो वाटर बचा है अभी, दैट पर्टिकुलर वाटर इज कंसिडर्ड एज इफ्लुएंट्स। सो इन दिस पर्टिकुलर इफ्लुएंट्स व्हाट इज हैपेंड देयर, सो देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ सो मच ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोनेंट, उसमें अब ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोनेंट्स है, एंड बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, पैथोजेनिक, some fungus is also there, then some bacteria are there, the viruses are there, the many different kinds of the microorganisms are there. So this water now considered as the effluents. तो ऊपर का जो वाटर है, मड जमा हो गया, ऊपर का कचरा भी निकल गया, अब ये जो बीच वाला जो वाटर बचा हुआ है, so that one is called as the effluents. So this particular effluents now going to be released into the second tank. So when you consider that such a type of that particular tanks are there, तो ये हमारा ये पहला टैंक था, तो पहले टैंक में हम लोगों ने ये वाटर का पहला स्टेप कंसीडर किया, फिर यही से दूसरा टैंक की तरफ वाटर जाएगा ये, सो दैट दिस वन इज नथिंग बट द फर्स्ट टैंक इज देयर, सेकंड टैंक। जैसे ये वाटर पहले स्टैंड से यहाँ पर और वेस्ट मटेरियल को निकालने के बाद, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को निकालने के बाद, by filtration method and by the sedimentation process, what will be the effluents which we are going to be produces there, effluents. So these particular effluents now get released into the second tank. Now what has happened in this particular second tank? Here you have to constantly agitate this particular water by using the machines. और यहाँ पर ये second वाला जो tank होता है, in this particular tank our biological process gets start. So that is our second step. तो पहला वाला जो step था हमारी ये physical process, तो physical या mechanical process तो हमारा complete हो गया। अब जो दूसरा होता है, so that one is nothing but the biological process. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ये सेकंड स्टैक में चालू होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टैंक हमारा होगा उसमें रहेंगे एरोबिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। We could not have to bring that particular bacteria from elsewhere. हमें ये बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये सारे बैक्टीरिया उसी वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा? बिकॉज वाटर इट मे बी द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर वाटर, वो जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल अभी बचा हुआ है उसी को खाकर, उसी का एज अ फूड बोल के इस्तेमाल करके उसी के ऊपर ये बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। और जैसे जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का कंजम्पशन होगा, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल गोइंग इंक्रीजेस, बैक्टीरियल colony also going to be increases, bacterial population also going to be increases, and that going to ultimately increases the biological oxygen demand, or that is also called as biochemical oxygen demand, and that simple words we can say that BOD, biological oxygen demand या फिर biochemical oxygen demand in this particular water body is going to be increases. What it means, इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, वन ग्लास ऑफ वाटर इज देयर, सो दैट इज प्योर वाटर, एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर प्योर वाटर नो एनी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इज देयर, अनदर प्योर वाटर इज आल्सो देयर, सेम वाटर यू हैव टेकन इनटू द अनदर ग्लास, एंड हियर यू एडेड सम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हियर। अब मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने
फूड डाल दिया, ऑर्गेनिक ब्रेड डाल दिया, एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दिया इसके अंदर, अबाउट ब्रेड या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, व्हाट इज हैपन दैट सेम सोर्स ऑफ वाटर इज देयर, यहाँ पर सेम सोर्स ऑफ प्योर वाटर था, पीने का पानी था ये, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला है, सो दिस वन इज नथिंग बट द प्योर वाटर है, ये भी हमारा प्योर वाटर है, बट दिस वन इज नथिंग बट द ब्रेड पीस इज देयर, तो यहाँ पर ये ब्रेड पीस हम लोगों ने डाल दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट इज हैपन दैट इसका डिकेइंग चालू हो जाएगा, डिकेइंग प्रोसेस, तो इसके ऊपर में अब फंगस भी ग्रो होना चालू हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी होगा। तो जैसे ही यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होगा, देन व्हाट इज हैपन दैट अब यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे, यहाँ पर जितना पॉपुलेशन था बैक्टीरिया का वो उतना ही है, यहाँ पर क्या हो गया, फूड मिलने के कारण ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा और पानी के पास पहले से ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पहले से ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का एक मात्रा होता है पानी के अंदर। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो होने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गया उन्होंने खुद के जिंदा रहने के लिए, these all are the aerobic bacteria, that means they require the oxygen, उन्होंने खुद के जिंदा रहने के लिए वो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको लेना चालू कर दिया। जैसे धीरे धीरे वो ऑक्सीजन को लेना चालू करते हैं तो पानी के अंदर रहने वाला जो ऑक्सीजन है उसका वैल्यू कम होते जाएगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगेगा। तो जो सोर्स उतना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका कंजम्पशन जो रेट है वो बढ़ेगा। सो व्हाट दैट पर्टिकुलर इंडिकेट दैट, सो पहले मान लीजिए अब इसका बीओडी जो भी है, पहले उसका बीओडी तो 0 था, लेकिन अब इसका बीओडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट वे गोइंग टू इंक्रीज अप टू द 0.4 बोलो 0.5 बोलो, दैट मीन्स सो दैट पर्टिकुलर बीओडी गोइंग टू बी इंक्रीजेस। देन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी उसमें रहने वाला जो फूड कंटेंट है ये पूरा बैक्टीरिया खा लेगा। अब उनको बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, देखो फूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बढ़ेंगे कैसे। तो फिर इसके बाद जैसे ही ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वहां से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया का फॉर्मेशन, बैक्टीरिया का डिवाइडेशन का प्रोसेस जैसे ही बंद हो जाएगा, फिर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, ये हम लोग पता करने का तरीका जो है, सो दैट इज नथिंग बट द बीओडी वैल्यू। पहले तो उसका बीओडी 0 रहेगा, वो वाटर प्योर है क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आएगा तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, जैसे ही वो ग्रो होंगे उसके कारण से वहां पर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा और जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिमांड रहेगा दैट मीन्स उतना वो वाटर कंटेमिनेटेड है, उतना वो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, और जैसे ही वो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगा। So higher the biological oxygen demand, that means the higher the quantity of that particular organic waste material is present in that particular water body, and when BOD going to be released decreases down, that means the organic waste material going to be decreases. So this is the way. So that is the way we can find out how much amount of that particular organic waste material is present in that particular water. So once that particular biological oxygen demand going to be increases, so here what has happened that, so this one is nothing but an aeration tank. अब ये aeration tank है, यानी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर हम लोग बढ़ावा देने वाले हैं, हमेशा पंपिंग होता रहेगा वाटर का, एंड हियर दैट पर्टिकुलर वाटर कुड नॉट गेट सेटल अप, इसको सेटल नहीं होने देना है। सो कॉन्स्टेंटली हाउ टू एजिटेट, कॉन्स्टेंटली वी हैव टू स्टीयर बाय यूजिंग द मशीन, तो मशीन के द्वारा इस वाटर को कॉन्स्टेंटली स्टीयर करता रहेगा, घुमाया जाता रहेगा, यानी वो वाटर को सेटल डाउन नहीं होने देंगे। उससे क्या हो जाएगा, पानी के अंदर रहने वाले जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको खाना चालू करेंगे, खाने से उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा बीओडी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल भी कम होते जाएगा, और एक बार ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि बीओडी पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो बीओडी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, और एक अल्टीमेट ऐसा समय आएगा जहाँ पर बीओडी बहुत कम होगा। दैट टाइम वी कंसिडर दैट, वी कैन एज्यूम दैट in that particular water now that particular organic waste material going to be decreases to a certain amount. Now we can release that particular water into the next tank. So what has happened that whenever that particular aeration tank is there, here
the flocks. What you can say that the flocks. The flocks are nothing but the population of bacteria along with the fungus that grows over the water surface. जहाँ पर पानी जमा रहता है गंदा पानी, वहाँ पर देखो फेस के जैसा आया हुआ रहता है, वो फेस बबुले बबल्स के जैसा आया हुआ कुछ दिखता है हमें, वही फ्लॉक्स है. तो फ्लॉक्स में रहता क्या है? फंगस थ्रेड्स आर देयर फॉर्मिंग द मेश लाइक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल कॉलोनी. सो बैक्टीरियल कॉलोनी अलॉन्ग विद द फंगल थ्रेड्स दे फॉर्मिंग द फ्लॉक्स एंड विच में गेट फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस. तो यहाँ पर ये सारा वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट हो. तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट धीरे धीरे कम होते जाएगा. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पहले तो इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होगा. जैसे ही वो कम होगा, दैट गोइंग टू इंडिकेट नाउ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल गोइंग टू बी डिक्रीजेस देयर. नाउ अप टू सम एक्सटेंट नाउ यू हैव टू रिलीज दैट पर्टिकुलर वाटर इनटू द अनदर टैंक. अब ये जो वाटर है, अब इसको हम लोग अनदर टैंक में छोड़ देंगे. सो नाउ व्हाट इज हैपेंड दैट धीरे धीरे ये पूरा का पूरा वाटर अब नेक्स्ट टैंक में छोड़ा जाएगा. एंड हियर द एनाएरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज. एनाएरोबिक बैक्टीरिया, व्हाट यू कैन से दैट एनाएरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया. अब जैसे हम लोग ये वाटर को यहाँ छोड़ देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर रहने वाले जितने भी ये बचा वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, जो एरोबिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया बॉटम को सेटल डाउन होंगे. नाउ सेटलिंग विच में गोइंग टू बी कैरिड आउट हियर. हियर द सेटलिंग होगा और ये वाले टाइम में जो भी बॉटम को सेटल डाउन होगा, दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज एक्टिवेटेड स्लज. अब इसको कहा जाएगा एक्टिवेटेड स्लज. पहले वाले टैंक में मैंने बताया था दैट इज ओनली कॉल्ड एज द प्राइमरी स्लज, वो प्राइमरी स्लज था. अब यहां पर जो तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज. व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज? सो हियर यू से दैट सेकंड वाले टैंक में, दैट मींस द थर्ड नंबर का ये जो टैंक रहेगा, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो जमा होगा बॉटम को, उसका थोड़ा क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल नाउ यू शुड हैव टू रिलीज इनटू द सेकंड नंबर टैंक. एंड दिस वन इज कंसिडर्ड एज इनोकुलम. यू कैन सिंपली से दैट द स्टार्टर. जैसे हम लोग अपने घरों में मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करने के लिए करते हैं, अपने घर में हम लोग करते क्या है, मिल्क का जो कन्वर्शन होता है वो कर्ड में करने के लिए पहला वाला जो दही होता है, हमारे पास कर्ड होता है, उसको हम लोग मिल्क में डाल देते हैं. उससे क्या हो जाता है, द कन्वर्शन प्रोसेस जो होता है मिल्क का कर्ड के अंदर, वो फास्ट हो जाता है. द सेम थिंग यू हैव टू कैरी इट आल्सो देयर. हम लोगों को यहाँ पर जो सेटल डाउन होने वाला जो टैंक है तीसरे नंबर का, वहाँ पे जो जमा हुआ वाला जो कचरा है, यानी यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अमाउंट दिस पर्टिकुलर एक्टिवेटेड स्लज नाउ यू सेट आउट टू अगेन री इंसर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर सेकंड नंबर टैंक. इससे वो जो एरोबिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया है उसका पॉपुलेशन ट्रेमेंडस रेट से बढ़ेगा और ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को खाने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ये जो प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होगा. नाउ व्हाट हैपेंड दैट हियर, जैसे ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब ग्रो होने वाले, सो दीस आर नथिंग बट दी एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर. सो दिस पर्टिकुलर एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउ दे गोइंग टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर एरोबिक बैक्टीरिया. अभी जो एरोबिक बैक्टीरिया, जो फंगस था और जो भी बचा कुचा ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोनेंट था, उस सारे कंपोनेंट्स को, ये बैक्टीरिया को, ये फंगस को खाने वाली ये बैक्टीरिया. अब जैसे जैसे ये बैक्टीरिया उसको खाना चालू करेंगे, दीज आर नथिंग बट दी एनाएरोबिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया. इससे क्या हो जाएगा, उस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, फंगस आर द अदर रिमेनिंग इज देयर, सो दैट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैसेस. And the major gas is nothing but the methane gas is there, and then carbon dioxide gas, and the other gases are also going to be produced in traces. Now you can collect that particular gas and that particular methane gas which is going to be produced here, so that is nothing but the biogas, and this particular biogas we are going to use in a different kinds of the applications. So government of India, the Ministry of Environment and Forest have started such a type of that particular Ganga action plan is there, Yamuna action plan is there, for to make clear our rivers. So these all are nothing but the much polluted areas are there. Now what has happened that because of this particular sewage water, use are the million amount of that particular gallons of water which may going to be wasted. So this particular water, once we have, which we going to once this particular water get treated by using this particular STPs, एंड देन दैट पर्टिकुलर वाटर, अब यहाँ पर जो रिलीज होने वाला जो वाटर है, जो क्लीन होने वाला जो वाटर है, अब अगर हम इस वाटर को रिलीज करते हैं
रिवर के अंदर, उससे क्या हो जाएगा, हमारे रिवर के अंदर होने वाला जो पोल्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा. एंड दैट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर टू कैरिड आउट दी microbial action, and you going to release, are you going to make that particular water clear. So this is actually the sewage treatment plants. So in this sewage treatment plant, the microorganism which are present inside that particular water, same microorganism we are going to use, and that particular water much clear, and that particular water get released into the river bodies. It could not going to harm our water bodies, natural water bodies. So that's the way is there. Thank you.